Welcome to the third video of the daily LRDI practice series. The drill remains same. First, you have to pause this video, try it yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start with the solution. This says a supermarket has to place 12 items coded A to L in shelves numbered 1 to 16. 5 of these items are types of biscuits, 3 are types of candies, and the rest are type of savories. Only one item can be kept in a shelf. Item are to be placed such that all the items of the same type are clustered together with no empty shelf between items of the same type and at least one empty shell between two different types of item. At most two empty shells can have consecutive number. Right, and on the basis of this we have these additional 7 statements which we'll be using to solve the problem. Now let's start solving this problem and let's understand one statement. Let's start with the first one, right? So there are 16 shelves. 16 अपने पास shelves है. इसमें से we have to place 12 items. Now obviously we'll be choosing 12 places out of these 16 available places. Now items को हम क्या बोल रहे हैं? There are A to L, A B C D F G H I J K L. Now 5 of these items are types of biscuits. So कहीं पे हम इसको लिख लेते हैं. So let's say हमारे पास biscuits would be 5 items. Then 3 are types of candies. So candies अपने पास क्या है? 3 है. And the rest are type of savories. Now total items कितने थे? 12 थे. So 8 अपने पास हो गया. तो remaining would be savories and that would be 4 items. So this is the first piece of information. ओनली वन आइटम कैन बी केप्ट इन अ शेल्फ. तो एक पर्टिकुलर शेल्फ में आप एक ही आइटम रख रहे होगे. आइटम आर टू बी प्लेस सो दैट ऑल द आइटम्स ऑफ द सेम टाइप आर क्लस्टर्ड टुगेदर. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि ये बिस्किट्स 5 है तो ये सारे के सारे 5 बिस्किट्स एक साथ आएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कि कभी 2 बिस्किट के बीच में एक किसी और टाइप का आपका आइटम प्लेस होगा. सो ऑल द बिस्किट्स विल बी टुगेदर, all the candies will be together, and in a similar way all the savories will be together. Now with no empty shelf between items of the same type. तो अगर वो 5 आएंगे तो 7 भी आएंगे और उनके बीच में कहीं पे कोई स्पेस नहीं वेकेंट होगा. सो वो कंटिन्यूसली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बिस्किट्स है तो दे विल हैव टू ऑक्यूपाई 5 कंटिन्यूस ब्लॉक्स here. Right, this is what is meant by that statement. And at least one empty shelf between टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स. तो ये बोलता है कि जैसे ये 5 का ग्रुप आया और ये 3 का ग्रुप आया कहीं पे, इनके बीच में एटलीस्ट एक आपका ब्लॉक क्या होगा? एम्प्टी होगा. राइट, एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल्स कैन हैव कंसेक्यूटिव नंबर. तो जिस तरीके से ये स्टेटमेंट ने आपको बोला कि एटलीस्ट 1 का गैप होगा, ये स्टेटमेंट वही सेम चीज़ को डिफरेंट तरीके से और क्या बोलता है? एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल्स कैन हैव कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो एम्प्टी शेल्स क्या होंगे? मैक्सिमम आपके 2 कंसेक्यूटिव हो सकते हैं, बिकॉज तभी 2 कंसेक्यूटिव नंबर होगा. फॉर एग्जांपल 6 and 7 मैक्सिमम ये 2 ही आपका कंसेक्यूटिव हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि 6 भी एम्प्टी है, 7 भी एम्प्टी है और 8 भी एम्प्टी है, बिकॉज फिर वो लास्ट लाइन को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा. राइट, सो अभी तक के हमारे इन्फॉर्मेशन काफ़ी सिंपल है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल दी स्टेटमेंट्स. अब उसके बेस पे हम यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट, A and B are to be placed in consecutively numbered shelves in increasing order. इसका क्या मतलब निकल के आएगा कि A and B को हम consecutive shelves में place करेंगे. मतलब they are obviously a part of the same type of राइट आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल या तो बिस्किट है या तो सी है या तो सेवरीज है, बट ए और बी साथ में आएंगे. दे हैव टू अकर एज अ ग्रुप एंड ऑल्सो इट इज क्लियरली मैंशनड कंसेक्यूटिव नंबर शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है उसमें ए लेफ्ट होगा, बी अपना राइट होगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, I and J are to be placed in consecutively numbered shells. Almost previous statement जैसा दिया हुआ है, that is I and J are to be placed in consecutively numbered shells, both higher numbered than the shells in which A, B are kept. तो ये बोल रहा है कि I, J को हम consecutive नंबर्ड शेल में प्लेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप तुरंत से नोटिस करो, मैंने ये बोला कि ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बट इसमें एक पॉइंट तो डिफरेंस है. यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ था ए एंड बी आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. एग्जैक्टली, तो ए बी का ऑर्डर स्पेसिफाइड था कि ए लेफ्ट में होगा, बी राइट में होगा.
इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इट इज ओनली मेंशन दैट आई एंड जे आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ. तो इट कुड बी आई जे एज वेल, इट कुड बी जे आई एज वेल. ठीक है, वो कंसेक्यूटिव ही आएंगे, both higher number than the shells in which A and B are kept. Now इसका ये मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि आई जे या फॉर दैट मैटर जे आई हमेशा ए बी के राइट में दिखेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, D, E, F are savories and are to be placed in consecutively numbered shells in increasing order. Again order specified है और ये भी बोल दिया है कि D, E, F are actually savories, right? And obviously consecutive numbered shells in increasing order after all the biscuits and candies. तो इसका ये मतलब निकला कि हमने बोला था कि बिस्किट्स, कैंडीज और सेवरीज एज अ ग्रुप हमेशा साथ में आएंगे. तो सेवरीज जो है वो बिस्किट्स एंड कैंडीज के बाद आएगा, राइट. तो सबसे लास्ट में आपको कहीं पे 4 ये सेवरीज एक साथ आते दिखेंगे, जिसमें से भी डी ई एफ कंसेक्यूटिव है और उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी है, डी फॉलोड बाई ई फॉलोड बाई एफ, राइट. K is to be placed in shelf number 16. अब या तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन हो गई कि लेट से हमने यहाँ पे K को यहाँ पे प्लेस कर दिया. नाउ ये जो सेकेंड वाली रो है बेसिकली हम अगर डिफरेंट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आएंगी उसको कंसिडर करने के लिए हमने बनाया हुआ है. तो लेट स्टार्ट राइटिंग इन द फर्स्ट रो. अगर कुछ हमें समझ में आया कि डिफरेंट अभी पॉसिबिलिटीज हम ले सकते हैं देन विल बी यूजिंग द सेकेंड रो. तो K अगर यहाँ पे आ गया, फिक्स हो गया, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेवरीज तो सबसे लास्ट में होंगे और सबसे लास्ट में K भी आया. और सेवरीज में टोटल देखो तो 4 आपके आइटम्स हैं, जिसमें से D, E, F आपको पता है कि गारंटीड है, दिया हुआ था. दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि सेवरीज में ये D, E, F ही एक्चुअली K के साथ आएंगे. दीज आर एक्चुअली द 4 आर्टिकल्स इन सेवरीज. ये जो आपके 4 सेवरीज है, तो इसके साथ हम यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हैं. सो दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F, right. So savories is actually taken care of. Now next, L and J are items of the same type while H is an item of a different type. Now ये क्या बोलता है, L and J are items of the same type. That means कि L आपका इनके साथ है, right. I J या J I जो भी बोल लो आप, I J, तो J and L are items of the same type while H is an item of a different type. अब हम इसके बेस पे ये नहीं बोल देंगे कि ए बी टाइप का आपका एच होगा, क्योंकि अभी हमने ये नहीं बोला है कहीं पे भी कि आई जे एंड ए बी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बट हमें ये पता है कि जे के साथ आपका एल है, उसी सेम टाइप का है, तो एच आपका एक डिफरेंट टाइप का होगा. सो आई जे अगर आपके सी पार्ट के हुए तो आपका एच में भी बी का आ जाएगा. आई जे अगर आपके बी के हुए तो एच आपका सी का आ जाएगा. सो हमें अभी थोड़े और स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे टू फिगर आउट दैट. नाउ C is a candy. Now C is a candy, ये चीज आपका guaranteed दिया हुआ है. So candy is C and is to be placed in a shelf preceded by 2 empty shelves. Now एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए आपको. इसमें जब भी आपका ये बिस्किट्स आएगा ये 5 साथ में आएगा, ये कैंडी आएगा तो आपका 3 साथ में आएगा. इसमें कभी भी जब ये ग्रुप एज सच साथ में आएगा तो हमें ये पता है कि उससे पहले एटलीस्ट एक एम्प्टी होगा. दैट मीन्स इस 3 के जो फर्स्ट आइटम होगा उसके पहले आपका एक एम्प्टी हमेशा होना पड़ेगा. अब इस स्टेटमेंट को अगर हम वापस पढ़ें तो क्या बोलता है, सी इज अ कैंडी एंड इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रिसीडेड बाय 2 एम्प्टी शेल्फ्स. दैट मीन्स कैंडी का जो फर्स्ट आर्टिकल होगा वो एक्चुअली में सी ही होगा और कैंडी से पहले 2 आपके वेकेंट सेल्स दिखने चाहिए. This is all the crux of this particular statement. Now इसी तरीके से इसमें L is to be placed in a shelf preceded by exactly 1 empty shelf. Now again अगर आप देखो इसके बेस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि कैंडी का C जो है वो फर्स्ट वाला पार्ट है, राइट. C का कैंडी आपका फर्स्ट आया आपका. इसी तरीके से L is to be placed in a shelf preceded by exactly 1 shelf. That means L भी जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप का वो पहला आपका आर्टिकल होगा, आइटम होगा, राइट. सो बिकॉज सी इज अ कैंडी तो अब फर्स्ट प्लेस पे है तो एल अब आपका कैंडी टाइप का नहीं हो सकता, ऑल्सो सेवरी टाइप का है नहीं क्योंकि अब स्पेस बची नहीं है. दैट मीन्स एल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बी और इसमें भी ये एक्चुअली में फर्स्ट आर्टिकल होगा.
राइट. सो दिस इज हाउ द स्टेटमेंट लुक्स लाइक राइट नाउ. और अगर आप रिकॉल करो तो एल के साथ आपका एक और इन्फॉर्मेशन दिया था, एल एंड जे आर आइटम्स ऑफ द सेम टाइप. तो ये तो हमने उस समय पे कर आउट करा था. उस टाइम पे क्या लिखा होता है, एच इज एन आइटम ऑफ अ डिफरेंट टाइप. दैट मीन्स एच एंड एल आर डिफरेंट आइटम्स. एल के बारे में हमने स्पेसिफिकली क्या बोल दिया, इट इज अ टाइप ऑफ बिस्किट. दैट मीन्स H शुड नॉट बी अ बिस्किट नाउ. तो H क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा. तो H इज अ टाइप ऑफ C. अभी H इस कैंडी में सेकेंड प्लेस पे है या थर्ड प्लेस पे नहीं पता, बट लेट्स राइट दैट डाउन कि H इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस कैंडी. अब अगर आप एक्चुअली नोटिस करोगे, चीज़ें अब काफ़ी सिंपल होने वाली है. कैंडी में आपका C इज ऑलरेडी देयर, H यहाँ पे दोनों प्लेसेस में एक होगा, तो एक ही पोजीशन आपकी यहाँ पे वेकेंट रह गई. अब अगर हम यहाँ पे ये डिसाइड करना स्टार्ट करें कि ये जो ए बी एज अ ग्रुप आएगा, दोनों एक ही आर्टिकल होंगे, एक ही टाइप का होगा, या तो बिस्किट या कैंडी. ये कैंडी अब नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी को आने के लिए दो प्लेसेस चाहिए होंगे. दैट मीन्स दिस ए बी एज अ ग्रुप बोल लो या इंडिविजुअल आर्टिकल्स बोल लो, दीज आर नॉट कैंडीज, दीज आर एक्चुअली गोइंग टू बी बिस्किट्स. राइट. एंड सेम लॉजिक से आई जे भी साथ में ही आएगा हमेशा, तो आई जे भी आपका ऑब्वियसली कैंडी नहीं है. तो ए बी एज वेल एज आई जे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दीज बिस्किट्स. इसमें भी आई जे या जे आई, जो भी ऑर्डर में आप बोलो, ये हमेशा ए बी के बाद में आएंगे. सो वी कैन सेफली से कि बिस्किट्स में क्या ऑर्डर होने वाला है, ए बी. अब इसमें जो आपके बाकी के दो प्लेसेस हैं, इसमें आई जे अरेंज हो सकते हैं. इट कैन बी आई जे और इट कैन बी दिस ऑर्डर. सिमिलरली अब आपका H ऑब्वियसली कैंडी का पार्ट है, तो इसमें आपका क्या आर्टिकल बच जाएगा, इसमें आपका G बच जाएगा. तो H एंड G अगेन कैन बी इन एनी ऑर्डर. अब सेवरीज तो ऑब्वियसली आपका लास्ट में है, बट इसमें बिस्किट्स एंड कैंडीज के दो पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं. या तो आपका बिस्किट पहले होगा या तो आपका कैंडी पहले होगा. बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कैंडी से पहले दो एम्प्टी शेल्फ होना चाहिए, और बिस्किट से पहले आपका L इज अ टाइप ऑफ ऑब्वियसली बिस्किट, तो एग्जैक्टली आपका L से पहले एक एम्प्टी शेल्फ होना चाहिए. सो इसी पे हम वो दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर सकते हैं. सो ये तो हमारा फिक्स है. लेट्स राइट दैट डाउन, D E F एंड K. अब इसके बाद अगर हम दो पॉसिबिलिटी लेंगे, पहले केस में हम लेट से B को पहले रखते हैं, C को बाद में रखते हैं. तो B को अगर पहले रखना है तो पहला वाला आपका एम्प्टी शेल्फ हो जाएगा, देन B लाइन से आएगा, दैट इज L A B and ij can be in any order, so ij j I. देन कैंडी आएगा तो कैंडी के पहले दो एम्प्टी शेल्फ होंगे, तो दीज टू हैव टू बी एम्प्टी. एंड C and H and G can be in any order, and also this would be empty because हमेशा एक एम्प्टी तो पहले आएगा ही आएगा. राइट. नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी में वी कैन प्लेस द कैंडीज फर्स्ट, तो फिर आपका दो एम्प्टी शेल्फ्स आएंगे. इसके बाद आपका C H एंड G G and H एंड देन B आपका एक एम्प्टी शेल्फ के साथ आएगा, तो एक एम्प्टी शेल्फ हुआ. एंड देन फाइनली L A B एंड अगेन द टू पॉसिबिलिटीज, दैट इज I J या फिर J I, and this would be empty. So this is what the arrangement of these biscuits, candies and savories looks like, and using this information we can also solve all the given problems. Right. So अब हम problems देख लेते हैं. So the first statement, the first question, in how many different ways can the items be arranged on the शेल्फ्स. नाउ इसको थोड़ा ध्यान से काउंट करना पड़ेगा. अभी फिलहाल अपने दो केसेस तो हैं, बट इसमें भी और पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर केस के लिए अगर आप देखोगे तो कितने तरीके होंगे. आप I और J को दो तरीके से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, एंड सिमिलरली H एंड G को यहाँ दो तरीके से प्लेस कर सकते हो. तो बेसिकली 2 into 2 एक ही पर्टिकुलर केस के आप टोटल चार पॉसिबिलिटीज़ IG या HG के करस्पॉन्डिंग बना सकते हो. राइट. आई अगेन रिपीट, यहाँ पे आई रख के अगर आप जे रख के फिक्स करके चलो तो यहाँ पे HG भी बनेगा, दो केसेस. सिमिलरली अगर आप यहाँ जे और यहाँ आई रखते हो तो अगेन HG या फिर GH दो पॉसिबल केसेस बनेंगे. एंड दैट इज सिंपली दो तरीके यहाँ पे, दो तरीके यहाँ अरेंज करने के. एवरीथिंग इज ऑलरेडी फिक्स, सो 2 into 2 4 केसेस.
एंड इन सिमिलर वे यहाँ पे भी आपके टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आएंगे. सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम वुड बी अ टोटल ऑफ 8 केसेस. राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट. सो बिस्किट्स हमारे कौन थे? LABIJ. सो L इज अ बिस्किट, A इज अ बिस्किट, B इज अ बिस्किट, बट G इज नॉट अ बिस्किट. सो यही हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन represent, obviously we have two cases, so can represent the number of the empty shells in a possible arrangement. Now check कर लेते हैं. तो 1 7 11 12. So 1 7 11 11 is obviously never vacant, so ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा. 1 5 6 12. So 1 5 is never vacant, तो ये भी गलत हो गया. 1 2 6 12. So 1 2, फिर इस केस की बात कर रहा है, फिर वो 1 2 6 12. This obviously can represent the numbers of the empty shells. Right. Now let's move on to the final and the fourth problem. So this says, which of the following statement is necessarily true? Right, necessarily. Let's check one statement after the other. So there are two empty shells between biscuits and candies. Right, two empty shells between biscuits and candies. So this is possible, this is also not possible. So we have both the cases. Biscuits and candies के बीच में आपका एक का भी गैप हो सकता है एंड दो का भी गैप हो सकता है. राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली ट्रू. All the candies are kept before biscuit. This is also not definitely true because we have seen both the arrangement are possible. All biscuits are kept before candies, not necessarily true. There are at least 4 shells between items B and C. So first case में अगर आप चेक करो B and C, at least 4 shells between. So B and C के बीच में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 cases है. यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे C and यहाँ पे B, तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 shells है. That means this statement is necessarily true. I hope you have understood this set. This is a easy to moderate level arrangement set. Okay, thank you.